Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. I continue to receive number of attempts and your comments on my various YouTube videos. Yes, sir, I have attempted this much number of questions in IBPS officer prim. Should I prepare for mains? Whether I will clear the first leg? What is your take on cutoff? As far as cutoff is concerned, I have already posted a video on that. That is seen by more than 70,000 people till now. You can watch that video. That will show you what is my estimation of cutoff. When I give some cutoff, does not mean that is the lower limit. Even in some areas, the cutoff may go below that. Especially some people for Assam are asking, sir, last year cutoff was 41. You are talking about 50. This year vacancies are higher. Why it will go up? The cutoffs of 2 years are not interrelated. And secondly, whatever estimation you are making, it is based on the information provided by the candidates. So even if the cutoff may go below that, and that's why I always advise each and every candidate, if you have appeared in the examination, you must prepare for mains. Because cutoff prediction is the most difficult task in this world. So cutoff can be in the range of any marks. So better option is, cutoff is just to satisfy the you can say anxiety. It is not a thing that once we say that this is cutoff, that is final. No, cutoff will come when the real result will come. So you always have a chance of getting or appearing in the main examination. So my advice to you is, you must prepare for mains. And how to prepare for mains, that we will discuss in this video. Now, if your exam of office assistant is scheduled for tomorrow or day after, you need not prepare for IBPS RRB officer main in these 2 days. Concentrate on the upcoming examination. But if your exam is on next Saturday, then you should spend your time in such a fashion that one day is dedicated to IBPS RRB officer, another day is dedicated to IBPS PO, and third day is dedicated to IBPS Office Assistant Prim. So if you will adopt this schedule, it will help you. So one day each. So if you are attempting all the 3 examinations, so what should be your schedule for IBPS officer main? You should attempt 1 mock test from the link that is available in description and comment column. This is very good mock test I have suggested you. If you have not subscribed till now, subscribe it today. Thousands of our subscribers are able to improve their performance by using this mock test. Identify your weak areas, focus on those weak areas. Along with that, you should also spend 1 hour on current affairs. For current affairs, I have identified very good source for you. Link is available in description column. Subscribe this current affair and start reading current affair from monthly PDF, few pages daily. Another area where you should focus is banking, finance and economics. I have provided you a video link of 190 videos that is free of cost. So you should watch at least 10 videos per day, because only 30 days are left. And you can even make the notes of that. That will help you in main examination. Then daily news on banking, finance and economics is equally important. So we are uploading 1 video daily. So there is a playlist of July news, August news and September news. Watch 5 videos daily from this playlist. This will cover your recent news from the field of economics, finance and banking.
Many questions came from such news in the LIC assistant examination main. So this is very important. And another thing is computer knowledge. For computer also I have given you a link in description column. You can use that material and you can use the other materials also. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। जिन लोगों का IBPS RRB ऑफिसर का एग्ज़ाम पिछले हफ्ते हो गया है, वो अभी भी लगातार अपने अटैम्प्ट्स मुझे बता रहे हैं और अटैम्प्ट बताने के साथ ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं मेन की तैयारी शुरू कर दूं या ना कर दूं, आपका क्या मानना है, इतने अटैम्प्ट में मैं पास हो जाऊंगा। कट ऑफ से संबंधित हमने एक वीडियो संडे को डाली थी। 72,000-73,000 के करीब लोगों ने उसको देखा है। आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टेट वाइज ये कोशिश की है बताने की कि लगभग कट ऑफ क्या होगा। हो सकता है कुछ लोगों की अटेम्प्ट उस कट ऑफ से लेस हो। क्या ये अंतिम कट ऑफ है? नहीं। जो एस्टिमेशंस होते हैं वो किसी डेटा पे आधारित होते हैं। कट ऑफ उससे नीचे भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि ये तो सिर्फ एक हमारी एंजाइटी को दूर करने का तरीका है, पर यदि हमने एग्ज़ाम दिया है तो हमें ये मान के चलना है कि हमें मौका मिलेगा मेन में बैठने का। ये हमें मान के चलना है। हो सकता है मौका मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। तो अगर हम मेन की तैयारी करते रहते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं उसमें होने वाला है। कुछ ना कुछ हम नॉलेज गेन ही करेंगे और वो नॉलेज हमारे इस एग्ज़ाम में काम नहीं आएगी तो इस सीज़न में तो बहुत एग्ज़ाम है, किसी दूसरे एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। पर यदि हम पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएंगे तो ये दिन फिर वापस नहीं आएंगे। कई बार ऐसा होता है अचानक रिजल्ट आता है, हमारा प्रीम पास हो जाता है जबकि हम सोच रहे होते हैं कि हमारा तो पास नहीं होगा। उस समय फिर टाइम वापस नहीं आता है। इसीलिए मैं लगातार अपने वीडियोस में कहता हूँ कि हमें पढ़ाई निरंतर करते रहना है। कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं है एस्टिमेशन करने के कि क्या रिजल्ट आएगा। जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी तरीके हैं, सिर्फ ये हमें दिल को तसल्ली देने के लिए होता है। हाँ हाँ सर ने ये नंबर बोल दिया, मेरे तो इससे ऊपर अटैम्प्ट है, चलो मेरा तो हो ही जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं है जिनका उनसे नीचे अटैम्प्ट है वो निराश होकर बैठ जाए कि नहीं नहीं मेरा नहीं होगा। आपका भी हो सकता है। तो हमने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है? यदि मेरा कल और परसों में एग्ज़ाम नहीं है ऑफिस असिस्टेंट का, तो हमें इस जो वीडियो में बताया गया रास्ता है उसको अडॉप्ट करना है। और अगर आपका कल या परसों एग्ज़ाम है तो अभी आप कल और परसों के एग्ज़ाम पे ही फोकस करेंगे। उसके लिए मैंने अभी एक वीडियो इससे पहले डाली है, उस पर ध्यान देंगे। तो आपको अपना देखना है कि मेरा कौन सा एग्ज़ाम है। क्या मेरा ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम कल या परसों है या अगले सैटरडे? जिनका अगले सैटरडे है उनके लिए क्या करना है, उन्होंने 3 दिन अलग अलग चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है। एक दिन उनको लगाना है IBPS RRB ऑफिसर मेन पे, एक दिन लगाना है IBPS PO प्रिम पे और एक दिन लगाना है IBPS ऑफिस असिस्टेंट प्रिम पे। एक एक दिन डिवाइड करिए। ऑलमोस्ट कई चीज़ें कॉमन है, पर मॉक के लिए आसानी रहेगी कि एक एक दिन बांट लें। क्योंकि कई लोगों को ये होता है सर कौन सा मॉक कर रहे हैं, इतने सारे एग्ज़ाम अब एक साथ सिर पे आ गए हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, एक एक दिन बांट लीजिए। तो अगर आपका अगले हफ्ते ऑफिस असिस्टेंट का है तो आज आप एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे फ्रॉम द लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में दिया। बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है। हज़ारों लोगों को लगातार इम्प्रूवमेंट आ रही है, आप में भी आएगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आज इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एनुअल प्लान लें, ताकि आपको सारे मॉक टेस्ट मिलते चले जाएं। अब आपने ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया, आपको पता लग गया मेरी क्या कमियां हैं, उनको नोट कर लीजिए, उस पर फोकस करिए। टेक्स्ट बुक से पढ़िए उन टॉपिक्स को। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि करंट अफेयर की तैयारी आपको लगातार करनी है। 1 घंटा रोज़ आप करंट अफेयर पे दीजिए। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा सोर्स बता दिया है, बहुत ही एग्जॉस्टिव सोर्स है। इसको पढ़ लेंगे आपका करंट अफेयर काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कॉलम में है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मंथली PDF से कुछ पेजेस रोज़ पढ़ लीजिए। फिर सवाल आता है बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की तैयारी मैं कहाँ से करूँ? उसके लिए मैंने आपको फ्री 190 वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया। उससे 10 वीडियो रोज की देख लीजिए।
आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी, नोट्स भी बना सकते हो आप इसके। फिर बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस की डेली न्यूज़ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हम जुलाई से ये वीडियो डालते चले आ रहे हैं। तो अब आपके पास 3 प्ले लिस्ट है, जुलाई की वीडियोज़ हैं, अगस्त की और सितंबर की हैं। 5 वीडियो इसमें से रोज़ देख लीजिए, ये भी आपकी न्यूज़ कवर हो जाएगी। फिर रह गया कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के लिए अच्छे मटेरियल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो ले लीजिए, फ्री है ये सारा का सारा मटेरियल, यहाँ से पढ़ाई कर लीजिए। मतलब अब हमें बहुत प्लानिंग से चलना है। 1 महीने के अंदर अंदर हमारा IBPS ऑफिसर मेन एग्ज़ाम हो जाएगा, बीच में PO का एग्ज़ाम भी आ रहा है, बीच में ऑफिस असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम आ सकता है। सारे एग्ज़ाम को साथ लेके चलना है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा मॉक आज करें। एक दिन डेडिकेट कर दीजिए, और किसी भी दिन एक से ज़्यादा मॉक नहीं करना है। ओवर प्ले मत करो मॉक्स के साथ, उससे भी बहुत टेंशन हो जाती है। गॉड ब्लेस यू ऑल।